Hello. So this video is about new session year data copy. Uh, Three things you have to test. So these are the tables you have to test for all these tables which are given here, and these three things needs to be tested for wherever applicable. This vanilla copy has to be tested for every table, but for these two tables wherever applicable. Now how you will test? Okay, let me take this example, admission status, and if I go here, okay, and let me write this query. If you see here, admission status, control C, control V, okay. Now you see I'll run both this, and in okay, first you run this, and you have to test this in old dev, and you see this message 16 rows, then you test for 16 rows again. This is what you need to test, and just have a look at it that the data is okay or not. I mean for 6 and 7. So this is vanilla copy. You have to test for ASG mapping ID 6 and ASG mapping ID 7. You can take another example, fee structure. I'm taking this example, okay, fee structure for ASG mapping ID 6. How many rows? 8 rows. Now these 8 rows should also be copied for ASG mapping ID 7, 8 rows, right? And you can see that, okay, category ID and all these things, what is coming in here. But for vanilla copy, you have to just see that the rows are copied or not. Okay. Now coming to the second kind of a uh, update mappings, right? So in new session year table data, only rows where mappings will be updated are these, where it says that update which column of this table. Now it says fee structure table का फी टाइप मास्टर आईडी कॉलम अपडेट करना है. कहाँ से अपडेट करना है? फी टाइप मास्टर के फी टाइप मास्टर आईडी से अपडेट करना है. बराबर. Okay, how do you test this? Let us go here. So to test this, I have to also see this. I have to explain you this as well, right? Let me go here. Now, if you see in fee structure what has happened, fee structure, this was the data, fee structure ID 1, fee type master ID was 2, fee category is 7, no problem. Now, what I am saying in this table, if you see, कि फी स्ट्रक्चर को जब डेटा कॉपी करना है तो इसका जो कॉलम फी टाइप मास्टर आईडी है उसे भी अपडेट कर दो. और अपडेट कहां से कर दो? फी टाइप मास्टर की फी टाइप मास्टर आईडी से. तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये फी टाइप मास्टर आईडी जो 7 के लिए कॉपी हुआ होगा उसमें ये चेंज हो गया होगा. नाउ यू सी 48 फी टाइप मास्टर आईडी 62 हो गया. यू सी दिस, राइट? लेट मी ब्रिंग इट हेयर. इफ यू सी ये 2 का 62 हो गया, 5 का 65 हो गया, एंड सो ऑन, राइट? 5 का 65 हो गया. अब ये कैसे पता लगेगा आपको कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है? So let us go a step back and let me see this table fee type master ID, right? Okay. So what I am doing is I'll copy this, control C, and I'll write this, control V, control V, right? So all these are coming here. Okay. Control C, control V, 6. Now fee type master ID, fee type master, control C. So if you see in this table what has happened to जो मेरा 61 था, okay, let selecting both, जो मेरा फी टाइप मास्टर आईडी 1 था वो 61 हो गया, जो 2 था मेरा वो 62 हो गया. That's what we are doing in this table. If you see, जो मेरा 2 था वो 62 हो गया यहाँ पर. बराबर. However, I don't want you to go and check each and every row. आप सिर्फ जब इसकी टेस्टिंग करें तो ये देखिए कि ये कॉलम अपडेट हो गया, और
इट इज वाइज दैट आप जिस टेबल से अपडेट हुआ है उस टेबल की एक या दो मैपिंग को चेक कर लें, सो दैट यू आर श्योर कि बाकी सब ठीक ही हुआ होगा। अगर जैसे मैंने 2 का 62 मैप कर लिया, एक और कोई मैप कर लेंगे, 5 का 65 हो रहा है, इफ दीज थिंग्स आर ओके देन वी आर गुड टू गो। ओके, लेट मी कम टू द थर्ड टेस्टिंग। थर्ड टेस्टिंग आई हैव रिटन इज फाइनल अपडेट। ओके, बट ये अपडेट मैपिंग केवल चार ही टेबल्स में होनी है इनमें, करेक्ट? ओनली दीज फोर एंड नथिंग एल्स। थर्ड इज, थर्ड टेस्टिंग जो होनी है वो फाइनल अपडेट वाली टेस्टिंग होनी है। उसके लिए आप ये अपडेट क्वेरी डिटेल्स वाली देखिए, 1 2 3 4 5 एंड एटलीस्ट एक्चुअली ये सिक्स भी, राइट? आपको ये देखना है कि ये एडमिशन स्टेटस के अंदर यहां पर जो मैंने लिख रखे हैं कॉलम्स, क्या लिखा हुआ है? एडमिशन कोड को सेशन ईयर नेम प्लस क्लास कोड ऐसे आना चाहिए। स्टार्ट डेट 1 ईयर आगे बढ़ जानी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ भी 1 साल आगे बढ़ जानी चाहिए, एंड टू डेट ऑफ बर्थ भी 1 साल आगे बढ़ जानी चाहिए। और एडमिशन सेशन इज इक्वल टू न्यू एडमिशन सेशन ईयर, तो ये सारे कॉलम अपडेट हो जाने चाहिए। ओके, नाउ कमिंग बैक, अगर मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूं तो आप यू जस्ट हैव अ सी दिस। आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है अभी, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने बोला एडमिशन कोड 1920 की जगह ये 2122 हो गया, और ये प्ले ग्रुप आ रहा है क्योंकि क्लास मास्टर आईडी 1 के लिए ये क्लास मास्टर आईडी का कोड जो है प्ले ग्रुप ही है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। करेक्ट? सी, क्लास मास्टर आईडी 1 इज प्ले ग्रुप ओनली, सो दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद मैंने कहा कि एडमिशन सेशन ईयर भी बढ़ जाना चाहिए, तो 3 से 4 हो गया। मैंने कहा कि स्टार्ट डेट, एडमिशन स्टार्ट डेट बाय डिफॉल्ट 1 साल आगे बढ़ जाए, तो 2020 2/13 से 2021 2/13 हो गई, दिस इज फाइन। फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ भी 1 साल आगे बढ़ गई, और टू डेट ऑफ बर्थ भी कंपेरेटिवली, व्हेन आई से कंपेरेटिवली, इससे 1 साल आगे बढ़ जानी चाहिए। तो यू जस्ट चेक 3 4 5 कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स हो गए तो दैट्स फाइन, फाइनल अपडेट इज ऑल्सो वर्किंग फाइन, राइट? ओके, नाउ सिमिलरली ये वाली टेस्टिंग जो है फाइनल अपडेट की 1 2 3 4 5 इन पांचों टेबल्स के लिए करनी है एप्लीकेबल के लिए। डन? ओके, वंस यू हैव डन दिस, आप फिर 003 के डेटाबेस में आइए, और जितनी भी ये अपडेट कॉपी हैं, ये जितनी भी, जैसे यू नो एडमिशन स्टेटस कहाँ आता है, एडमिशन स्टेटस स्क्रीन मालूम है, फी फ्रीक्वेंसी डिटेल मालूम है, तो वहां पे जाके 21 22 सेशन ईयर चूज कीजिए, and you see the correct data is coming or not for the new session here automatically. That's what you need to test, right? So these testing steps you can read here, कुछ डाउट है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट यू कैन इसमें से ये वाले जो है ना कॉलम्स आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, यू जस्ट गो फ्रॉम हेयर डाउन। ओके, और कुछ यूजफुल क्वेरीज हैं, आपको सेलेक्ट करने के लिए लिखने नहीं पड़ेंगे, सब 7 और 6 ये क्वेरी टेबल में देखिए मैंने लिख के दे दिया है, सो वी आर गुड। थैंक यू। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम कनेक्ट बैक।